हेलो स्टूडेंट्स, अज तुहाडी प्रैक्टिकल की सैकेंड डैमो क्लास जी है मैं लाने जा रहा। तुहानूं मैं उस दिन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के रिगार्डिंग दस्सिया सीगा कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है की चीज़। ये मैं तुहानूं इहदी एप्लीकेशन सब तो पहले समझाई सी कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ही यूज़ कित्थे करते हैं, इहदी यूटिलिटी की है, इंडस्ट्री के इहदी यूटिलिटी की है, इहदी लैबोरेटरी के यूटिलिटी की है। कि तुहानूं मैं दस्सिया सीगा कि ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੋਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਨਨੋਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਨੋਨ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਪਿਓਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਪਿਓਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਪਿਓਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਵੋਲੀਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਪਿਓਰ ਹੈ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਲੀਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ +1 ਤੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਟਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਟਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਐਸਿਡ ਵਰਸਸ ਬੇਸ ਟਾਈਟਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਸਿਡ ਦੇ ਬੇਸ ਦਾ +1 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹਨ, ਬੇਸ ਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲਕਲੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਕਲਾਈਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਲਕਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, potassium hydroxide, all these are alkali. Acid HCl H2SO4, all these are acid. ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਟਰੇਸ਼ਨ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਬੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ +2 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਟਾਈਟਰੇਸ਼ਨ ਸੇਮ, ਆਪਰੇਟਰ ਸੇਮ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ oxidizing agent versus reducing agent। titration between oxidizing agent and reducing agent। +2 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, +1 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ +1 ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ +2 ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। +1 ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ +2 ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਟੈਪ ਅਨਦਰ, ਉਹ ਸਟੈਪ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਟੈਪ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂ। +1 ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਨ ਐਸਿਡ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨੋਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਬੇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲਕਲੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ +2 ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਇੱਕ ਨੋਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਣਾ। हाँ जी स्टूडेंट्स,
एक्सरसाइज नोट करो, दिस इज फॉर +1 स्टूडेंट्स। एसिड वर्सेस बेस टाइट्रेशन करनी है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस तो ही करना है। यदि पहली एक्सरसाइज है, यू आर प्रोवाइडेड विद n/10 HCl सोल्यूशन। HCl सोल्यूशन है जिहदी नॉर्मैलिटी पता है, दैट इज n/10। n/10 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0.1 नॉर्मल भी देख सकते। ਹੁਣ ਇਹ नॉर्मैलिटी पता है, नॉर्मैलिटी की है, एक कंसनट्रेशन है सोल्यूशन की। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ फस्ट यूनिट ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ नॉर्मैलिटी ਤੇ मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन वगैरह बारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ नॉर्मैलिटी इज़ ए कंसनट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूशन। HCl की नॉर्मैलिटी पता है, मतलब कि ਇਹਦੀ कंसनट्रेशन ਸਾਨੂੰ पता है। डिटरमिन वॉल्यूमेट्रिकली नॉर्मैलिटी ऑफ अननोन सोल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की ਜਿਹੜਾ अननोन सोल्यूशन है ਉਹਦੀ नॉर्मैलिटी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ पता करनी है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ यूज़ हो रहा है ਉਹ HCl यूज़ हो रहा है, अल्कली या बेस ਜਿਹੜਾ यूज़ हो रहा है ਉਹ NaOH यूज़ हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। +2 वाले स्टूडेंट्स नोट करन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्सेस रिड्यूसिंग एजेंट ਤੁਸੀਂ यूज़ करना, टाइट्रेशन करनी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ਜਿਹੜਾ ਉਹ KMnO4 है। KMnO4 इज पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। रिड्यूसिंग एजेंट ਜਿਹੜਾ यूज करना है दैट इज मोहर साल्ट सोल्यूशन। मोहर साल्ट सोल्यूशन ना है दा, ठीक है। कैमिकल नेम ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अमोनियम। ਜਿਹੜਾ कैमिकल नेम है मोहर साल्ट सोल्यूशन ਦਾ कैमिकल नेम है ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट मोर साल्ट सोल्यूशन वर्सेस KMnO4। KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ਜਿਹੜਾ यूज़ करना है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ टाइट्रेशनस करनियां ने। ਹੁਣ एक्सरसाइज तो मेरे ख्याल ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर हो जाना चाहिए कि एक नॉन सोल्यूशन है जिहदी नॉर्मैलिटी पता है तो अननोन सोल्यूशन जिहदी नॉर्मैलिटी नहीं पता ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ नॉर्मैलिटी फाइंड आउट करनी है वॉल्यूमेट्रिकली, ठीक है। पहले डैमो क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਟਸ ਦਾ इंट्रोडक्शन दे चुका। ब्यूरेट की होंगी है, पिपट की है, टाइट्रेशन फ्लास्क की है, बीकर तो पता ही है ਤੁਹਾਨੂੰ, टाइट्रेशन स्टैंड हाउ टू होना कि प्रैक्टिकल करना किस तरह। ਇਹਦਾ प्रैक्टिकल ਜਿਹੜਾ ਉਹ मैं खुद ਤੁਹਾਨੂੰ करके दिखावांगा, एक रीडिंग लैके दिखावांगा, आंसर ਤੁਸੀਂ आप ਜਿਹੜਾ ਉਹ करना होएगा। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਲਵਾਂਗਾ ਉਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਕੀ ਸੀ, ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਔਨ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ कि हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूमेट्रिकली नॉर्मैलिटी ऑफ अननोन सोल्यूशन। भावें वो जड़ा वो अल्कलाइन सोल्यूशन होवे ते इधर भावें वो जड़ा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होवे KMnO4। फिर मैं कह रहा इधरला काम +1 वालियां दा, इधरला काम +2 वालियां दा, दोवां दा प्रोसीजर ते काम सेम है। एक्सरसाइज का फर्दर जड़ा डिफरेंस पई जाएगा। एक गल हो रहे थे सुन लो, कैलकुलेशनस जड़ियां ने वो सारियां नॉर्मैलिटी नाल नहीं होंदियां, मोलैरिटी दियां भी आउणगियां, पर ए सिंपलैसट है, सिंपल है। तुहानूं पहला प्रैक्टिकल मैं जिहड़ा करवाउण जा रहा इस करके ए बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज जिहड़ी चूज़ की है, जिहड़ी कि नॉर्मली हो जाती है, जिहड़ी कि ईजीली समझ आ जाए, ठीक है। ए पहले तो एक्सरसाइज नोट कर लो, ए +1 वाले नोट कर, इधरली एक्सरसाइज जिहड़ी है +2 वाले नोट कर, प्लीज़ नोट इट। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक ऑब्जरवेशन टेबल भी बना के रखना है जिहदे असीं रीडिंग्स लिखनियां ने। ऑब्जरवेशन टेबल 'च सब तो पहले सीरियल नंबर, इनीशियल रीडिंग
मैं ml इको बारी पा दिता, बार बार ml पाने की लोड़ नहीं पेगी, मिलीलीटर। फाइनल रीडिंग ml दे विच होएगी मिलीलीटर, तो वॉल्यूम यूज्ड बाय एसिड ml दे विच। देखो यह इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग तो वॉल्यूम यूज्ड बाय एसिड, यह रीडिंग्स जड़ियाँ ने ब्यूरेट के उत्ते आउणगियां। जी मैं तुहानूं उस दिन ब्यूरेट दिखाई सी, एक लंबी जी ट्यूब सी ब्यूरेट दिखाई सी। हुण जो मैं प्रैक्टिकल करांगा तुहानूं पता लग जाएगा। यह ब्यूरेट के उत्ते रीडिंग आनी है इनिशियल, जिथे असीं पहले सैट करनी है रीडिंग, फाइनल जो रिएक्शन तो बाद फाइनल रीडिंग होएगी, तो वॉल्यूम असीं मेजर करना है। जो प्रैक्टिकल का स्टैप करांगे उदों पता लगेगा। +2 वालियां ने भी बिल्कुल उस तरह ही इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, इत्थे आएगा इन्हां दा वॉल्यूम यूज्ड बाय KMnO4 सोल्यूशन। इत्थे इन्होंने KMnO4 यूज़ करना है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 सोल्यूशन की इत्थे रीडिंग आएगी। यह स्टैप जो नोट कर लो, ऑब्जरवेशन टेबल दोवें पासे बना लो। नैक्सट स्टैप मैं तुहानूं प्रैक्टिकल का लैके दसदा। हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ जी स्टूडेंट्स, यह लैबोरेटरी का सैटअप है, नजर आ रहा है सारे? दिस इज सेटअप फॉर लैबोरेटरी। ब्यूरेट जी तुहानूं उस दिन दिखाई सी। दिस इज पिपेट 20 ml, 20 ml नज़र आ रहा है सारे लिखा उत्ते। टाइट्रेशन फ्लास्क, मैं दोबारा रिकैलकुलेट करवा रहा। टाइट्रेशन फ्लास्क, बीकरस ने देखो हुण इन्हां बीकर के उत्ते मैं डिमार्केशन कर दी है। दिस बीकर कंटेन N/10 HCl सोल्यूशन। यदी नॉर्मलिटी सानूं पता है। सोल्यूशन किस तरह बनाया, यह तुहाडा काम नहीं, तुहाडे सोचण का नहीं कोई मतलब, तो यह प्रोवाइडेड है। दिस इज प्रोवाइडेड इन लैबोरेटरी, यह प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड बाय लैबोरेटरी। एंड दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। यदी नॉर्मलिटी कि मैं क्वेश्चन मार्क पाया कि यदी नॉर्मलिटी असीं फाइंड आउट करनी है। एंड दिस इज फिनोलथलीन। लिखण दे विच फिनोलफैथलीन आंदा है, पर यदी प्रोनाउंसिएशन जिहड़ी है फिनोलथलीन है। फिनोलथलीन इंडिकेटर, दिस इज एक्सटर्नल इंडिकेटर। यह +1 वाले स्टूडेंट्स वास्ते है। यह सैटअप जिहड़ा है यह +1 वाले स्टूडेंट्स के वास्ते है। +2 वालियां दा इस तो बाद मैं करांगा। +1 वाले स्टूडेंट्स अच्छी तरह देखण। +1 के प्रैक्टिकल्स के विच एक्सटर्नल इंडिकेटर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इत्थे दोनों सोल्यूशनस जिहड़े ने वो इक्को तरह के ने। इक्को तरह का मतलब कि यह भी वाटर लाइक है, वाटर लाइक है, या असीं कह लीए ट्रांसपेरेंट ने, या कह लीए कलरलैस ने। इन्हां दी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। किहड़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो किहड़ा HCl है, यह जे दे उत्ते ना लिखिया होए पता नहीं लग सकता। ठीक है, इस करके एक्सटर्नल इंडिकेटर इज रिक्वायर्ड, जिन्हें इंडिकेट करना है कि किहड़ा सोल्यूशन या रिएक्शन कदों कंप्लीट होया। एक्चुअली यह रिएक्शन जिहड़ा है, दिस इज आ एसिड बेस रिएक्शन। देखो एसिड के बेस एक दूजे के उलट ने, जिस तरह डे नाइट होंदा है, ब्लैक एंड वाइट होंदा है। एसिड ते बेस जो आपस में रिएक्ट करते हैं वो एक न्यूट्रल सोल्यूशन बना देंगे हैं। 9th 10th तुसीं एसिड के बारे पढ़ आए हो कि pH रेंज के तुसीं बारे पढ़िया सीगा कि pH रेंज जी 0 तो 7 तक जी एसिडिक है, 7 to 14 जी है वो बेसिक है या अल्कलाइन जिन्होंने असीं कहने हैं, तो 7 जो न्यूट्रल है। यह सारा पिछली क्लासेस तुसीं पढ़िया। हुण एसिड HCl यूज़ करते पे हो, बेस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हो रहा, खार जिन्होंने असीं पंजाबी कहने। तो इंडिकेटर ने सानू दसना है कि रिएक्शन कदों कंप्लीट हो गया। एसिड के असीं जो बेस घुलाना है तो एक न्यूट्रल सोल्यूशन बनना है, पर लेकिन हुण दोनों कलरलैस ने, न्यूट्रल कदों होया नहीं पता लगेगा। इस करके एक एक्सटर्नल एजेंसी यूज़ हो रही है, एक एक्सटर्नल कैमिकल यूज़ हो रहा है जिन्होंने असीं इंडिकेटर कहने हैं। वो इंडिकेट करता कि हाँ न्यूट्रल हो गया, जिन्ना रिक्वायरमेंट सी वो हो गया। ये देखो स्टैप्स ने कि फस्ट ऑफ ऑल वॉश होल अपरेटस विद वाटर। पानी के नाल इनू पूरे अपरेटस को असीं वॉश कर लेना। ब्यूरेट दे विच भी पानी पा के उन्होंने वॉश कर लेना। पीपट दे विच भी एक बारी पानी को सक करके असीं वॉश कर लेना। टाइट्रेशन फ्लास्क भी वॉश कर ली, बीकर्स भी वॉश कर ले। इन्ना काम असीं कर चुके हैं इत्थे। ठीक है, दैन रिंस द होल अपरेटस। रिंस द होल अपरेटस दे विच दो चीज़ों को असीं रिंस करना है।
Rinse pipette with sodium hydroxide solution and rinse burette with acidic solution. Rinse ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੀਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਵੋਲੀਅਮ ਬੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੋਲੀਅਮ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿੰਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਕਿ ਇਹ HCl ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਥੰਬ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੀਚੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਨੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਿੰਚ ਕੌਕ ਔਰ ਸਟਾਪ ਕੌਕ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੋਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਐਸਿਡ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਰਿੰਸਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ ਦਾ ਹੋਲ apparatus with water and then rinse burette with acid and clamp it on titration stand। ਇਹ ਮੈਂ clamp ਕਰਨਾ titration stand ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ। then sodium hydroxide ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਕੇ, ਇਹਦਾ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਰਿੰਗ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ, ਇਹਦਾ ਰਿੰਗ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਰਿੰਗ ਤੱਕ, ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਿੰਗ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਭਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰਿੰਸਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟਡ, ਰਿੰਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਓ ਦ ਟਰਨ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ, ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਫਿਲ burette with acidic solution ਜਿਹਦੀ ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪਤਾ, ਇਹਦੀ ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪਤਾ N/10। burette ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ HCl ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਭਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਡ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਨੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ml ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਅਪ ਟੂ 50 ml ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 50 ml ਤੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰੀਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰੀਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਿੰਚ ਕੋ ਖੋਲੋਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਰੀਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰੀਡਿੰਗ, ਸੇ 0 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰੀਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰੀਡਿੰਗ 0 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, 0 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਕਲੈਂਪ ਇਟ ਔਨ ਟਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਂਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਲੈਂਪ ਕਰਨਾ। ਕਲੈਂਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ you will have to pipette out 20 ml alkaline solution, NaOH solution, ਜਿਹਦੀ ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ 20 ml ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ। 20 ml ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਪ ਟੂ ਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਰਿੰਗ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ 20 ml ਹੋਏਗਾ।
केयरफुली सक करना और इस रिंग तो उत्ते चला गया हुण सोल्यूशन आ रहा नज़र। इनू तुसी अपनियां उंगलां नू उतली जिहड़ी फस्ट फिंगर है उन्होंने थोड़ा कस के रखो तो अंगूठे नाल मूवमेंट करनी शुरू करो। देखो सोल्यूशन ड्रॉप वाइज जिहड़ा थले डिगना शुरू हो जाएगा। जो ड्रॉप वाइज डिगना शुरू हो जाएगा नाल तुसी यह भी देखी जाना, मेरे हत्थों की मूवमेंट देखो कि मैं मूव करता पाया तो अप टू रिंग इनू लैके आना तुसी। ए हुण देखो मैं अप टू रिंग इस रिंग तक जितों तक मार्क पिया होया है इस सोल्यूशन नू लैके आना। आ गया अप टू रिंग। इस सोल्यूशन नू टाइट्रेशन फ्लास्क दे विच पाना, इनू तुसीं छड्ड दिओ, यह टाइट्रेशन फ्लास्क दे विच आ रहा है। टाइट्रेशन फ्लास्क दे विच नाउ टेक एक्सटर्नल इंडीकेटर। इंडीकेटर ये पाने सार ही यदा रंग चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो गया। दिस इज पिंक कलर। पिंक कलर इंडीकेट कर रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो पिंक कलर कन्वर्ट हो गया। हुण जो असीं रिएक्शन करांगे इहदा एसिड दे नाल, पिंक कलर चेंजिस टू कलरलैस। यह इंडीकेटर है। इंडीकेटर ने इंडीकेट करना कि कदों जिहड़ा वो सोल्यूशन जिहड़ा रिएक्शन है कंप्लीट होया, न्यूट्रल हो गया। नाउ इनिशियल रीडिंग इज टेकन एज 0। इनिशियल रीडिंग जी जीरो ले ली है असें। हुण टाइट्रेशन स्टार्ट करनी है। टाइट्रेशन दे विच यह स्टॉप कॉक है, इनू खब्बे हत्थ में यूज़ करना। टाइट्रेशन फ्लास्क तो राइट हैंड साइड पर, ये जो कोई लैफ्टी होएगा वो उलट यूज़ करेगा। आम तौर पर असीं इनू राइट हैंड साइड पर लेने। स्टॉप कॉक या पिंच कॉक नू असीं थोड़ा जिहा लूज करांगे तो सोल्यूशन चलना शुरू हो जाएगा एसिड का, तो इनू असीं स्वरलिंग मोशन देनी। स्वरलिंग मोशन लाइक दिस। एक कलरलैस हो गया। यह मैं जस्ट तुहानूं शो करने वास्ते ये कलरलैस जिहड़ा सोल्यूशन हो गया। तो रीडिंग फाइनल जिहड़ी है ये देखो कलरलैस हो गया। फाइनल रीडिंग जिहड़ी है वो मुड़ के इत्थों नोट कर लेनी तुसीं यूनिट के उत्ते कि फाइनल रीडिंग कितनी आई। कलरलैस होने तो बाद तुसीं फाइनल रीडिंग नोट करनी है। फाइनल रीडिंग देखोगे तो फाइनल रीडिंग जिहड़ी है वो 19.7 के करीब आ रही है। यह फाइनल रीडिंग है, मतलब 19.7 तक वॉल्यूम यूज़ होया तो जिहड़ा एसिडिक सोल्यूशन ने अल्कालाइन सोल्यूशन नू न्यूट्रल कर दिता। ठीक है, देखो ये हो गई फस्ट रीडिंग। ये रीडिंग्स जिहड़ियां ने कनकॉर्डेंट रीडिंग एक शब्द आएगा। कनकॉर्डेंट का मतलब होता है 3 कंसेक्टिव सेम रीडिंग्स। जिन्नी देर तक सेम रीडिंग्स जिहड़ियां ने 3 लगातार सेम रीडिंग्स नहीं आंदियां उन्नी देर तक प्रैक्टिकल जिहड़ा चलता है। ठीक है, दैन इस सोल्यूशन को तुसीं वॉश कर लेना। फिर टाइट्रेशन फ्लास्क को तुसीं वॉश कर लिया। पहली रीडिंग तुसीं ले ली। ठीक है, फस्ट रीडिंग तुसीं यू हैव टेकन। दैन दूसरी रीडिंग वास्ते फिर दोबारा उस तरह पेपर आउट करना। एक रीडिंग मैं तुहानूं होर लैके दिखा देना। मैं थोड़ा तेजी नाल लवांगा रीडिंग। सोल्यूशन पै गया जदा असी पता करना। दैन इंडीकेटर का 1 या 2 ड्रॉप यूज़ करने। सोल्यूशन चेंजेस टू पिंक। दैन रन द एसिडिक सोल्यूशन इन इट। एसिडिक सोल्यूशन जो असी रन करना इनू स्वरलिंग मोशन देनी है। फिर मैं थोड़ा कैमरे से खोल लिया। स्वरलिंग मोशन देनी एसिडिक सोल्यूशन
रन कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, सडनली सोल्यूशन गेट कलरलैस अगेन। पहले रीडिंग नोट कर ली, इनिशियल रीडिंग, दैन फाइनल रीडिंग, जिथे कलरलैस होया, जड़े पॉइंट से कलरलैस होया कलरलैस, दैन इट विल बी फाइनल रीडिंग। जे सेम रीडिंग आ रही है ठीक है, प्रैक्टिकल अगे करी जाओ। ये प्रैक्टिकल उन्नी देर तक कंटिन्यूस रहता है जिन्हें देर 3 कंजैक्टिव सेम रीडिंग्स जड़ियाँ ने वो नहीं होंगी। यह सी +1 वालियां दा काम। हुण +2 वाले नोटिस करो। हाँ जी, +2 वाले ध्यान दो। Here it is KMnO4 solution which is purple in color, oxidizing agent है, and another is Mohr salt solution, कलरलेस है, फेरस अमोनियम सल्फेट डबल साल्ट। प्रोसीजर वही रहेगा जड़ा +1 वाले किया कि असी टाइट्रेशन करनी है। यह मोर साल्ट सॉल्यूशन है, इनू पिपट आउट करना, पिपट आउट करके 20 ml, क्योंकि +1 वाले ने पहले काम किया होया थोड़ा जिहा टाइट्रेशन का, 20 ml उस तरह ही अप टू मार्क 20 ml लैके इन टाइट्रेशन फ्लास्क के पा लेना। Now the important factor is no external indicator used. KMnO4 act as self indicator, क्योंकि ये कलर्ड सोल्यूशन, कलर्ड सोल्यूशन थोड़ा जिहा कैमरे कोल कर देवां। दिस इज कलर्ड सोल्यूशन, पिंक कलर का सोल्यूशन है, तो यदी रीडिंग जी है इनिशियल रीडिंग मैं 0 से सैट की। एक गल होर याद रखो, कलर्ड सोल्यूशन की अपर मिनिस्कस उपरली लेयर जी देखिए अपर मिनिस्कस, तो कलरलैस सोल्यूशन की लोअर मिनिस्कस देखी दी। देखो जो लैवल होंगे ना लिक्विड का वो इस तरह बनता, जोड़ा कलर्ड सोल्यूशन होंगे वो अपर मिनिस्कस देखी दी है इस तरीके 90 डिग्री के उत्ते, तो जोड़ा कलरलैस होंगे वो लोअर मिनिस्कस जी है वो चैक करी दी। यदा मैं 0 के उत्ते सैट किया रीडिंग जी। एंड हरेक प्रैक्टिकल जिथे तुम करना है उस चीज़ के उत्ते डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 यह यूज़ करना। देखो कारण की है वो मैं हले नहीं दस पावांगा, वो मैं तुम्हें नैक्सट लैक्चर में दसांगा कि रिएक्शन होया किस तरह। तुसी इंडिकेटर एक्सटर्नल इंडिकेटर नहीं यूज़ करना, वो कंपैरिजन दे विच डाइल्यूट H2SO4 दी हाफ टेस्ट ट्यूब जड़ी है वो तुसी यूज़ करनी है। हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट H2SO4 वो ये पा देनी। दैन वी स्टार्ट टाइट्रेशन, फिर तुसी टाइट्रेशन स्टार्ट करनी। हुण ए देखो बिल्कुल उलट जाएगी, उत्थे पिंक टू कलरलैस सी, इत्थे कलरलैस टू पिंक होएगा, कलरलैस टू पिंक। जिन्नी देर तक पिंक नहीं आता वो एंड पॉइंट है। उत्थे एंड पॉइंट की सीगा पिंक टू कलरलैस, इत्थे एंड पॉइंट होएगा कलरलैस टू पिंक। इनू रन करांगे तो फाइनल रीडिंग नोट करांगे। पिंक कलर पै रहा है, कलरलैस हो जा रहा है, पिंक कलर पै रहा है क्योंकि सोल्यूशन पिंक कलर का कलरलैस हो जा रहा है। जिस पॉइंट के उत्ते आके यह पिंक कलर हो जाएगा, टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, रीडिंग वो फाइनल होएगी। स्टॉप वाइज ड्रॉप वाइज करना, स्टॉप कॉक में बड़े ध्यान नाल तुसीं यूज़ करना, जेंटली इनू तुसीं खोलना ताजो रिक्वायर्ड सोल्यूशन ही जड़ा वो विच जावे। इट इज़ टर्निंग पिंक नाउ, लाइट पिंक कलर जड़ा डिवेलप होएगा। दिस इज लाइट पिंक कलर। एक अद्धा ड्रॉप होर पा लेने, लाइट पिंक कलर। थोड़ी जी रोशनी पै रही है जिहदे करके थोड़ा जा अलग किस्म का नज़र आ रहा, लाइट पिंक कलर। दैन वी टेक फाइनल रीडिंग। फाइनल रीडिंग असीं इत्थों नोट कर लांगे। फाइनल रीडिंग जिहड़ी है वो जिन्नी भी आएगी वो असीं डिफरेंस कढ़ देना कि डिफरेंस कितना आ रहा। देखो फाइनल रीडिंग जिहड़ी है वो 18.7 के करीब आई, 18.7 के करीब जी फाइनल रीडिंग आई।
दिस इज़ प्रैक्टिकल पार्ट। ਇਹ फस्ट रीडिंग ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਥਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਫੋਰਥ ਰੀਡਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੀਡਿੰਗਸ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਕॉर्डेंट रीडिंग, मैं बार बार शब्द बोल रहा हूँ, कंकॉर्डेंट रीडिंग नहीं आ जाए। कंकॉर्डेंट रीडिंग का मतलब ये है 3 कंसेक्टिव सेम रीडिंग्स, मतलब सानू एग्जैक्ट मेजरमेंट का पता लगेगा कि KMnO4 कितना यूज़ होया, ਉਹਦਾ वॉल्यूम एग्जैक्ट कितना यूज़ होया। +1 वाले कंकॉर्डेंट रीडिंग ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ कि HCl एग्जैक्ट HCl ਦਾ ਕਿੰਨਾ वॉल्यूम यूज़ होया। ਇਹ प्रैक्टिकल पार्ट ਸੀ। ਹੁਣ है कि ਇਹ रीडिंग्स लैके ਅਸੀਂ करना की है, कैलकुलेशन किवें करनी है, ਅਸੀਂ आंसर किवें करना है। लेट अस सी। देखो बच्चों, हम जी उधर ऑब्जरवेशन प्रैक्टिकल के दौरान असी लितियाँ रीडिंग्स लितियाँ, वो असी इत्थे लिखांगे, ऑब्जरवेशन टेबल के लिखांगे। हाले तुसीं सिर्फ है नोट करी दो काम किहड़ा किहड़ा करना है। स्टैप वाइज मैं तुहानूं नैक्सट लैक्चर च दसांगा ये करना है, स्टैप वाइज किस तरह करना। इनिशियल रीडिंग असी ली सीगी 0, फाइनल रीडिंग +1 वाले +1 वाले नोट करो। फाइनल रीडिंग तुहाडी आई सीगी 19.5 ml। ML को लिख देना, बार बार लिखने की लोड़ नहीं। ਇਹਦਾ मतलब वॉल्यूम यूज्ड बाय एसिड कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल 19.5 माइनस 0 तो वॉल्यूम यूज्ड बाय एसिड 19.5 ml आ गया। ठीक है। +2 आया ने इनिशियल रीडिंग मैं स्टार्ट किया सीगा 0.00 ਦੇ ਨਾਲ। फाइनल रीडिंग कितनी आई 18.7 ml। तो वॉल्यूम यूज्ड बाय KMnO4 कितना आ जाएगा 18.7 माइनस 0 18.7 वॉल्यूम यूज्ड बाय KMnO4। हुण देखो इस तरह जिन्नी देर तक 3 कंसेक्टिव सेम रीडिंग्स नहीं आंदियां, प्रैक्टिकल का प्रोसीजर बार बार उही हो जाएगा। कंकॉर्डेंट रीडिंग जिन्नी देर तक नहीं आती उन्नी देर तक रिजल्ट जड़ा वो एंड नहीं होएगा प्रैक्टिकल का। से मैं तुहानूं एक रीडिंग लैके दसी है, से दूसरी रीडिंग भी नहीं आई, तीसरी रीडिंग भी नहीं आई, इधर भी सेम 3 रीडिंग्स आ गई। मान लो कंकॉर्डेंट रीडिंग आ गई, दैन हुण की करना कैलकुलेशन। हुण नैक्सट स्टैप जिहड़ा कैलकुलेशन दा, लेट अस सी। नाउ स्टूडेंट्स कैलकुलेशनस हुण तुसीं आंसर करना है। जिहड़ी एक्सरसाइज +1 वालियां वास्ते है या +2 वाले वास्ते है कि जनरल कैलकुलेशंस तकरीबन सेम ही ने। पहला स्टैप वही है कि कैलकुलेट इट्स कंकॉर्डेंट रीडिंग। कंकॉर्डेंट रीडिंग मेजर करने तो बाद जनरल कैलकुलेशंस दे विच आ जाता है कि वी नो दैट कंकॉर्डेंट रीडिंग जिहड़ी भी तुहाडी आई है बाय अप्लाइंग नॉर्मैलिटी इक्वेशन। नॉर्मैलिटी इक्वेशन +1 वाले वास्ते N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। N1 V1 के नीचे तुसीं लिख लेना है एसिड, तो N2 V2 के थले अल्कली। N1 एसिड सीगा, एसिड की जिहड़ी कंसनट्रेशन या नॉर्मैलिटी जिहड़ी सीगी वो नोन सीगी, कितनी सीगी N/10 दैट इज 0.1 नॉर्मल। ठीक है, इट वाज 1/10 और 0.1 नॉर्मल। एसिड का वॉल्यूम कितना यूज होया, वॉल्यूम यूज्ड बाय एसिड जिहड़ी तुहाडी कंकॉर्डेंट रीडिंग आई दैट इज 19.5। मैं इत्थे जनरल कर रहा, जनरल दे विच मैं V1 ही लिखांगा। जिहड़ी एक्चुअल कैलकुलेशन, एक स्टैप होंदा जनरल कैलकुलेशन, एक होंदा एक्चुअल कैलकुलेशन। मैं हाली जनरल कैलकुलेशन कराता सिखा रहा। जनरल कैलकुलेशन के मैं V1 ही लिखांगा, पर तुसीं कैलकुलेट कर चुके हो। V1 कितना आया एसिड का वॉल्यूम कंकॉर्डेंट रीडिंग 19.5। N2 अल्कलाइन सोल्यूशन, यदि असीं नॉर्मैलिटी फाइंड आउट करनी सी तो इसका वॉल्यूम कितना यूज किया, पिपट आउट कितना किया 20 ml। नाउ वी कैन फाइंड आउट N2 इथों फाइंड आउट कर सकते। N2 विल बी इक्वल टू 0.1 इंटू V1 डिवाइड बाय 20। This is how to calculate normality of an unknown solution।
ठीक है। हुण एक्चुअल कैलकुलेशन यह तुसीं प्रैक्टिस आप करनी कि इत्थे V1 तुहानूं वॉल्यूम यूज्ड बाय एसिड दैट इज कंकॉर्डेंट रीडिंग 19.5 गिवन सी 19.5 इत्थे लगा के 20 नाल डिवाइड करोगे 0.1 इंटू 19.5 डिवाइड बाय 20 एंड दी नॉर्मलिटी जी है तुहानूं एक्यूरेट या एक्चुअल नॉर्मलिटी का पता लग जाएगा। से N2 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 19.5 डिवाइड बाय 20 तुहाडा आंसर आएगा 0.097 डिग्री नॉर्मल। ठीक है, मैं तुहानूं एक्चुअल कैलकुलेशन भी नाल दस दित्ती। यह जनरल कैलकुलेशन सी, इत्थे असीं V1 जिहड़ा वो यह चीज़ लगा के कीता। दिस इज जनरल कैलकुलेशन। एक्चुअल मैं तुहानूं नाल दस दित्ती। यह तरीका है कि हाउ टू कैलकुलेट अ नॉर्मलिटी ऑफ अननोन सोल्यूशन इफ वन सोल्यूशन हैज़ इट्स पर्टिकुलर नॉर्मलिटी। जे एक सोल्यूशन की पर्टिकुलर नॉर्मलिटी पता होगी, इफ यू नो दैट तुसी दूसरे सोल्यूशन की नॉर्मलिटी पता कर सकते हो। ठीक है, यह तरीका सीगा, तुहाडा आंसर आ गया 0.097। यह सीगा तुहाडा पहला प्रैक्टिकल। सिमिलरली +2 वाले भी बिल्कुल उस तरह ही करनगे। इन्हां दी भी बाय अप्लाइंग नॉर्मलिटी इक्वेशन, मैं जनरल इक्वेशन जनरल कैलकुलेशन ही लिखांगा। बाय अप्लाइंग नॉर्मलिटी इक्वेशन। देखो मैं बार बार कह रहा हैं नॉर्मलिटी मैं सिर्फ तुहानूं ईजी समझाने वास्ते कर रहे हैं। एक्चुअली ये मोलैरिटी के नाल भी कैलकुलेशन जड़ियाँ ने वो आंदियाँ ने, तो इस करके पहला स्टैप मैं तुहानूं नॉर्मलिटी के नाल सिखा रहा। मोलैरिटी के नाल भी करांगे। दैट इज N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। N1 V1 के थले लिख लो KMnO4 ते ए थले मोहर साल्ट सोल्यूशन, मोहर साल्ट सोल्यूशन। फ्रॉम दिस यू कैन कैलकुलेट किसी की नॉर्मलिटी जी है तुसीं जे कैलकुलेट करनी हो तुसीं कैलकुलेट कर सकते हो। यह +2 वाले वास्ते जे तुसीं KMnO4 की यूज नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है दैन N1 विल बी इक्वल टू N2 V2 बाय V1। यह वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज जिहड़ा कंकॉर्डेंट रीडिंग दे विच आया इत्थे वो यूज हो जाना। नॉर्मलिटी ऑफ मोर साल्ट सोल्यूशन पता वो गिवन होएगी, दोवां चों एक दी ते गिवन होएगी स्टेटमेंट दे विच, ते V2 वॉल्यूम ऑफ मोर साल्ट सोल्यूशन जिन्ना पिवट आउट किया दैट इज 20 ml। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ +2 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ। ਜਨਰਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 0.1 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ N1 V1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ N2 V2। ਐਸਿਡ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਨੋਰਮਲਿਟੀ ਜਾਂ ਬੇਸ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ N2 ਕੱਢਣਾ N2 ਦੀ ਕਰਨੀ N2 ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ N1 ਇੰਟੂ V1 ਓਵਰ V2। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਆ V2 ਸੀਗਾ N1 0.1 ਸੀਗਾ, V1 ਜਿਹੜਾ 19.5 ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ N1 ਲਿਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। +1 ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ N1 ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਸਿਡ ਦਾ 19.1 ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨੋਰਮਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ N1 ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਨਰਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਲੀਅਮ 20 ml ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ V2 तो दसन वास्ते भी किया इतने आ जाएगा V2, इतने भी आ जाएगा N2 विल बी इक्वल टू N1 V1 ओवर V2। उसे N1 फाइंड आउट करना सीगा N2 V2 ओवर V2। एक्चुअल दे विच N2 तुसी अल्कलाइन सोल्यूशन दी नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी सीगी। 0.1 नॉर्मल एसिड सोल्यूशन सीगा, V1 कंकॉर्डेंट रीडिंग 19.5 वॉल्यूम यूज्ड बाय एसिड ਤੇ V2 ਅਲਕਲਾਈਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ 20 ml ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਦਾ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ +1 ਤੇ +2 ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਮ, ਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। +1 ਵਾਲੇ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨੋਟ ਕਰਨ, +2 ਵਾਲੇ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਾਮਨ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। +1 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ, +2 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ,
इस चैनल पर जाके मेरे लैक्चर को लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो, ताकि बाकी सारे फायदा मिल सके। जिन्ना मैं कर सकता सा लैबोरेटरी के जिन्ना प्रैक्टिकली असी हुण एक दूसरे के सामने तो नहीं हो सकते, पर लेकिन जिन्ना मैं कर सकता सी मैं तुहानूं दस्सण की कोशिश की। थैंक यू जी, दैट्स ऑल।